Hi everyone, my name is Arpita Agarwal and welcome to my channel Curious to Create. So in today's video we are going to make DIY from CDs. Okay, so for first DIY we need two CDs, and for first CD we need a cutout from a regular paper and you have to stick it on the back side of the CD. Now using acrylic color it on the one side of the CD and let it dry. Then take another CD, do the same process. Don't color it with black. Make a yin yang sign, that is a Chinese sign. Color it with acrylic color as well. I'm using white acrylic color. Color it properly using white and black, both acrylic colors. Though they don't require much of the time to dry, but let them dry properly. Now I am adding little dots as well. It looks good. Okay, now take the CD which we have painted first. Now on this CD I'm going to make dot mandala. So I'm taking different colors of acrylic paints to make mandala, and since I don't have those equipments for mandala, and this is the very first time I'm making a dot mandala, so I'm using the paint brushes for making these dots. You can use different kind of things to make these dots. I'm using different sizes of paint brushes for making dots, and I even used all-in-one pens for the smaller dots, or you can use anything else accordingly. Okay, you can make any design of your own choice. So the thing is, you can make any design, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. Decide whatever you have to make, or you don't even decide, just go with it, go with the flow. I just did it that way. So just make sure कि वो symmetrical हो and use different colors so that it looks more bright and beautiful. It's done. Okay, let it dry. Now take wool of any color you want and make tassels out of it. It's very easy to make tassels. Just make sure you tie it properly and cut the another end of the tassels and make sure they are even in size. Now इसमें क्या करना है, we have to take a string of wool and एक side से we'll make a knot and other side we'll put that in the needle. हम दोनों साइड से knot नहीं लगाएंगे, दोनों wool को connect करके, and then we'll put it from the very lower side of the tassel, ताकि वो जो knot होगी उसके अंदर अटक जाएगी, उसे हम बीच में से निकालेंगे. ओके, दिस इज हाउ वी डू इट. और उसे फिर निडल को हम बाहर निकाल देंगे. इसी तरह से हम बाकी और टैसल्स बनाएंगे. मैंने 3 बनाए हैं. अब ये दोनों ड्राई हो चुके हैं अच्छे से. इसके बाद हम किसी पे भी चिपका सकते हैं. मैंने यिंग यांग वाले पे टैसल्स स्टिक किए हैं, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर. तो कोई भी सीडी पे आप इस तरह से टैसल्स रख के और फेविकॉल या ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लो. जो ऊपर एक्सेस वूल निकल रही है उसे हम कट कर देंगे. ठीक है, सीडी के बाहर नहीं निकलनी चाहिए. और ये हम एक और स्ट्रिंग लगाएंगे वूल की, ताकि हम उसे हैंग कर सके इजीली. ठीक है, अच्छे से फेविकॉल या ग्लू को स्प्रेड कर दो ताकि वो जो दूसरी सीडी के साथ है वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा. अभी मंडाला वाली सीडी हम उसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि इनमें कोई एयर बबल्स ना रहे और अच्छे से स्टिक हो जाएगी. और इट्स रेडी. इट्स प्रीटी ईजी. बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इट्स रियली ईजी एंड इट लुक्स रियली गुड. इट्स डन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड DIY. So for that also we need CD, of course. Okay, so what I'm making here, I'm making coasters. So for that we need any kind of fabric. Make sure कि वो सही साइड पे आप स्टिक करो. CD पे आप ग्लू लगाने के बाद जब आप स्टिक कर रहे हो तो वो सही साइड पे हो, आप उल्टी साइड पे स्टिक मत करिए.
ठीक है, आप सीधी सही साइड पे स्टिक करो। उसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एक सर्कल सीडी के आसपास एक सर्कल बना लेना है पेंसिल से मार्किंग करके। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्सेस क्लॉथ बचा है सीडी के आसपास, उसे हम फेविकॉल की हेल्प से सीडी के पीछे स्टिक कर लेंगे। फेविकॉल से इजीली हो जाता है फैब्रिक स्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल अगर बाई चांस नहीं होता है तो यू कैन यूज हॉट ग्लू गन, ओके। ना वो इजीली स्टिक हो गया। और फिर हम सेम क्लॉथ का ही एक सर्कुलर पीस काट के उसके पीछे स्टिक कर देंगे ताकि सीडी पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाएगी और उसका कोई भी पार्ट दिखेगा नहीं। ये करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इजीली सूख जाए। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे येलो फैब्रिक कलर और एक्रिलिक कलर, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक डेजी फ्लावर, तो उसे बनाने के लिए मुझे येलो एंड वाइट फैब्रिक कलर एंड स्टार्ट मेकिंग द डेजी इन द वेरी मिडल, इन द लाइक सेंटर ऑफ द सीडी। टेक योर टाइम, डोंट रश। एंड डेजी इज रेडी। तो इसे को भी हम लाइक थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम चॉक लेंगे और उससे मार्किंग करेंगे। मैं ये क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं ये जहाँ भी मैंने मार्किंग की है वहाँ पे उस जगह पे मैं पर्ल्स ऐड करने वाली हूँ एज पे, ओके। तो मैंने ये इक्वी डिस्टेंस पे मार्किंग की है, 10 मार्किंग्स की है, आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थ्रेड और नीडल की हेल्प से जो पर्ल है उसे सीडी की एज पे स्यू करेंगे, ठीक है। उसे सीडी के एज पे सिलना है, नीचे नहीं और ना ही ऊपर, सीडी के एज पे सिलना है ताकि वो साइड में आ जाएगा, ओके। इस पर्ल को हम स्यू कर देंगे अच्छे से, ऐसे कि वो धागा भी ज़्यादा ना दिखे और इजीली स्यू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसी तरह से जैसे हमने ये एक स्यू कर रहे हैं, उसी तरह से हम बाकी के 9 भी इसी तरह से स्यू करेंगे, ओके। मैंने सारे पर्ल्स सीडी पे लगा दिए हैं, अब चाहो तो कम ज़्यादा लगा सकते हो। और मैंने सेम पैटर्न में डिफरेंट कलर में भी कोस्टर बनाया है, मैंने टोटल 4 कोस्टर बनाए हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट DIY। तो इसके लिए भी ऑफ कोर्स हमें सीडी चाहिए बिकॉज इट्स अ सीडी क्राफ्ट DIY। तो मैंने एक प्लेन सीडी पर क्लाउड्स और रेनबो बनाया है यूजिंग पेंसिल, वो इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंस इसमें भी कॉस वी हैव टू ऐड सम कलर, सो उसके बाद रेनबो जो कलर होते हैं विबग्योर, वी हैव टू पेंट इट इन विबग्योर कलर। इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने पहले DIY में किया था, हम इसके पीछे पेपर पेस्ट कर देंगे, ओके। और फिर मैंने इस रेनबो के सारे कलर्स कर दिए। उसके बाद आप ये जो क्लाउड है उसमें वाइट या फिर थोड़ा सा इसमें येलो ब्लू मिला के उसे पेंट कर सकते हो तो अच्छा लगेगा। उसे पेंट करने के बाद what I'm going to do is I'm going to write my surname because I'm making a name plate। मैं नेम प्लेट बना रही हूँ इसलिए मैं अपना सरनेम लिख रही हूँ उस पर। पेंसिल की हेल्प से थोड़ा सा हल्की सी मार्किंग हो जाएगी तो ईजी होगा बनाने के लिए। तो मैंने ब्लैक फैब्रिक कलर यूज़ किया है या एक्रिलिक कलर यूज़ किया है, उसकी हेल्प से मैं अपना सरनेम इसके ऊपर लिख रही हूँ एंड लेट इट ड्राई। अब हम दूसरी सीडी लेंगे और उसको हम ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट कर देंगे। उसके बाद वापस से इस पे भी हम वही पेपर स्टिक करेंगे पीछे, ठीक है।
ये होने के बाद CD और वो कलर होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी मार्किंग करेंगे. विल गेट टू नो व्हाई आई डिड दोज मार्किंग्स. मार्किंग से हमें आगे इजी होगा. तो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज कि मैं इसके ऊपर लिखने वाली हूँ होम स्वीट होम. ओके, तो ये भी नेम प्लेट का ही पार्ट है उसका पूरा. ये भी मैंने एक्रिलिक कलर से लिखा है होम स्वीट होम. उसके बाद ये गणेश जी मैंने ऊपर होम के ऊपर स्टिक किए हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वेडिंग कार्ड्स में. उसके बाद नीचे मैंने लीव्स लगाई है और ये जो होम स्वीट होम है उसके साइड्स में मैंने मिरर्स यूज़ किए हैं 2 डिफरेंट शेप के. आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो. आप चाहो तो कोई बीड्स या पर्ल्स, इवन कोई और भी चीज़ कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मुझे ये सही लगा, मैंने ये यूज़ किया. आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब उसके बाद मैंने 2 सर्कल्स काटे हैं नॉर्मल शीट के. थोड़ी सी थिक है, पेपर जितनी पतली नहीं है, थोड़ी सी थिक है. उसके बाद उस पर ऐसे इस तरह से मैंने वूल की स्ट्रिंग स्टिक कर दी और इस पर हम इस तरह से 2 लंबी स्ट्रिंग्स और स्टिक कर देंगे ऐसे. उसके बाद जो ये अग्रवाल जिस पे मैंने अपना सरनेम लिखा है उसे ऊपर स्टिक किया. ठीक है, और सेम चीज़ मैंने नीचे भी इसी तरह से करूँगी. एक्स्ट्रा जो वूल है वो कट कर दो. उसके अलावा पूरे सर्कल पे हमें स्प्रेड करना है फेविकॉल और उसके ऊपर हमें होम स्वीट होम स्टिक करना है. ठीक है, तो ये पूरी नेम प्लेट है ऊपर और नीचे वाली. उसके बाद मैंने गोटा फ्लावर्स लिए हैं. आप कोई और फ्लावर्स भी ले सकते हो, पेपर फ्लावर्स और एनी अदर फ्लावर्स, और उसे स्टिक कर दिया एंड इट्स रेडी. I hope you like my video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thanks for watching. Bye bye.